Good evening, everyone. This is the third webinar of our Parkinson Care Trust, third and last webinar of the Parkinson based on the Parkinson disorder. So we move on to the third webinar. So I'll start with the introduction of Dr. Parish Doshi. So he is a director of neurosurgery and functional neurosurgical program at Just Look Hospital. He is also director of the restorative and regenerative medicine at Just Look Hospital. He has several positions. He is the president of the Neuromodulation Society, secretary of the World Society of Stereostatic and Functional Neurosurgery, also the past president of ISSFN, also the board member of INS AASSFN. He is a member of the International Task Force for Psychiatric Disorders. He has more than 60 publications and 550 invited lectures in his credits. He is also recipient of the PhD at Rajasthan University and also the recipient of the several awards in his field of medicine and neuroscience. Welcome, Dr. Doshi. Thank you. Next is Dr. Devashri Thakur. She is a clinical research associate at Just Look Hospital and Research Center, Mumbai. She has several achievements in her credit. She is a medical professional with a strong background in the patient care, gaining 5 years of experience in hospital settings. She is currently research associate with Dr. Paresh Doshi. Her work primarily revolves around multiple research projects for disease, assessment and evolution of movement disorder, active involvement in DBS surgery, programming post DBS, and improving patient care. She is a passionate about bridging the gap between medical science and patient well-being. Welcome, Dr. Thakur. Last speaker is Dr. Professor Ray Chaudhary. He is a professor of neurology, movement disorder at King's College Hospital in London. He is the director of the Parkinson Foundation International Center of Excellence at King's College. He is also chairman of the Interest Engagement Committee and co-chair of Task Force of the Parkinson Wellness Committee of the Movement Disorder Society. He has published more than 350 peer-reviewed papers. So, researcher and director and assistant medical director at King's Hospital. He has published largest number of articles in his field. He has been considered as one of the top researchers in England and has been awarded prestigious UK and national NHS Gold Merit Award in 2021. So I'll invite Dr. Parish Doshi to say a few words about this webinar. Thank you for the kind introduction of the three speakers today. This is, as I said, the third and the last webinar in the series, and all the webinar recordings will be available to all of us. We are trying to translate. ये हिंदी में भी translate करने की कोशिश कर रहे हैं और translation भी आपको available होगा. तो अगर आप हिंदी में नहीं समझ, इंग्लिश में नहीं समझेंगे तो चिंता मत कीजिए. आज के जो स्पीकर्स हैं बहुत ही सिलेक्ट करने में बहुत ही सोच समझ के सिलेक्ट किया है इन लोगों को. प्रोफेसर रे चौधरी आज के जो स्पीकर है 15-20 मिनट में अपने साथ जुड़ेंगे. वो इंग्लैंड से जुड़ने वाले हैं. वो अभी अपने एक मीटिंग में व्यस्त है, बट 15-20 मिनट में ही विल बी विथ अस. डॉक्टर देवेश्री इज अ पार्ट ऑफ आवर टीम और वो काफ़ी टाइम से पार्किंसंस के मरीजों के साथ इंटरेक्शन कर रहे हैं, तो उनका पर्सनल अनुभव और उनके जो रिसर्च का पार्ट है वो अपने को सुनने मिलेगा. एंड ऑब्वियसली मेरी तरफ से आपको काफ़ी इंफॉर्मेशन मिलेगी कि अगर आपने डीप ब्रेन स्टिमुलेशन सर्जरी की है तो कैसे आपकी लाइफ उसके बाद सुधर सकती है. तो ये भी इम्पोर्टेंट जानकारी है, क्योंकि आज के पहले 2 वेबिनार में हमने कभी डीबीएस करना चाहिए, डीबीएस का क्या नए टेक्निक्स आए, वो सब के बारे में सुना. लेकिन डीबीएस का आउटकम, ऑपरेशन तो कर दिया, लेकिन उसका आउटकम कैसे इंप्रूव किया जाए, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे आज. सो लेट अस स्टार्ट द प्रेजेंटेशन एंड आई इनवाइट डॉक्टर देवश्री ठक्कर टू स्टार्ट हर presentation. Thank you so much, sir. First of all, I'm very obliged and privileged to have this platform sharing with you, especially with such international speakers and you holding these webinars for patients as well as their caregivers. So, starting and mentioning the caregiver word, I would actually, my today's topic is on caregiver, how we understand and help caregivers basically. Caregivers are those who support, basically support those who need support.
हु आर केयर गिवर्स? केयर गिवर्स कौन होते हैं? जैसे कि हमने जाना है, पार्किंसंस पेशेंट के साथ जो फैमिली मेंबर जुड़े होते हैं, फैमिली मेंबर यानी सिर्फ पेशेंट के स्पाउस नहीं, उनके हस्बैंड या उनकी वाइफ नहीं, बल्कि बाकी के फैमिली मेंबर्स भी जो उनके साथ जुड़े होते हैं, जो उनका देखभाल करते हैं, वो होते हैं केयर गिवर्स। हमें पता है पार्किंसन डिजीज एक ऐसा बीमारी है, न्यूरोलॉजिकल कंडीशन, डिजेनरेटिव प्रोसेस आई वुड से, जहाँ पे पेशेंट का उठना, चलना, बैठना, यानी कि दिनचर्या की हर वो एक्टिविटी अफेक्ट होती है, और उसी को उनका वो एक्टिविटी में हेल्प करने का काम, वो जिम्मेदारी एक केयर गिवर लेता है। नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट। सो एज आई सेड, पार्किंसंस डिजीज इज अ कंडीशन जो पेशेंट के मूवमेंट को काफी कठिन बनाती है, एंड केयर गिवर्स वो बैकबोन है उस पेशेंट के केयर की, जहाँ पे वो एक फिजिकल नहीं, यानी फिजिकली नहीं, पर उनके इमोशनल सपोर्ट भी बनते हैं, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट इन अ पार्किंसंस पेशेंट। Caregiving tasks can be demanding. Caregiving themselves, people forget कि caregivers के काम को डिमांड तो किया जाता है, लेकिन उनके बारे में कभी कोई सोचा नहीं जाता है, यानी कि caregivers को भी जो उनके डिमांड्स होते हैं, उनके अटेंशन होते हैं, वो पूरे नहीं की जाती है। तो उसी के बारे में आज मैं स्पेसिफिकली बात करने वाली हूँ। इस मेरे सेशन से हम ये पता करेंगे केयर गिवर्स को पेशेंट के साथ साथ अपने लाइफ को कैसे वो हेल्दी रखे, या खुद पेशेंट के साथ साथ खुद की वो केयर कैसे ले, इस पे मैं आज बात करूंगी। नेक्स्ट। एक्सेप्टेंस, ये वर्ड ही काफी बड़ी है। एक्सेप्टेंस कि ये पेशेंट को पार्किंसंस हुआ है, ये पेशेंट के लिए ही नहीं, बट हर वो फैमिली मेंबर के लिए भी एक बड़ा डायग्नोसिस के रूप में आता है। पेशेंट के साथ साथ इक्वली वही एक्सेप्टेंस पहला केयर गिवर को आएगा, तभी ही पेशेंट की आगे की जो जर्नी है वो आसान होगी। यानी कि पेशेंट के इस एक्सेप्टेंस को हमें समझना है कि अभी वो क्या कर सकते हैं, ना कि अब वो क्या नहीं कर पाएंगे, या कैसे नहीं चल पाएंगे, या कैसे वो काम नहीं कर पाएंगे। नहीं, एक्सेप्टेंस जहाँ आएगी, वहां आएगी जहाँ पे आप समझ पाएंगे कि अब वो क्या क्या कर सकते हैं, और ये गाइड वही कर सकते हैं जब केयर गिवर्स इसके बारे में वो ज्यादा जान सकेंगे। इसका जानकारी हमें देने, केयर गिवर्स को ये जानकारी कैसे मिलेगी? ऑफ कोर्स डॉक्टर्स है, सारे काउंसलर्स है, उनकी बात, उनसे बातें करके, उनको समझ के वही चीज वो इम्प्लीमेंट कर सके, ये हमें जानना है। बेसिकली फोकस ऑन व्हाट दे कैन रादर देन व्हाट दे कांट। नेक्स्ट। हमें पता है पेशेंट्स काफी चैलेंजेस से गुजरते हैं, बीट फिजिकल और मेंटल। सिमिलरली केयर गिवर्स कौन से फिजिकल चैलेंजेस से गुजरते हैं, हम इसके बारे में बात करेंगे। रोजाना उठना, चलना, नहाना, खिलाना, ये सब काम फिजिकली एग्जॉस्टिंग होते हैं। अगर ठीक से उठ नहीं पाए, बैठ नहीं पाए, खा नहीं पाए, तो ये सिर्फ पेशेंट के लिए ही प्रॉब्लमैटिक नहीं, बट केयर टेकर्स के लिए भी इक्वली टाइम कंज्यूमिंग एंड प्रॉब्लमैटिक हो जाती है। तो इसका उपाय क्या है? पहली चीज, वो सारी ट्रिक्स, वो छोटी छोटी आदतें पहले समझना है पेशेंट को, और उन्हें हेल्प करना है कि कैसे उनको उठा सकते हैं ट्रिक यूज करके, या कौन सी सेफ्टी डिवाइस यूज कर सकते हैं उनको चलने में मदद करने के लिए। उनको मदद करना, इसका मतलब ये नहीं कि आप किसी और की मदद नहीं ले सकते। इसके लिए इसकी जानकारी होना बहुत जरूरी है कि उन ट्रिक्स को कैसे अप्लाई किया जाए, और वो ट्रिक्स कैसे आप पेशेंट को सिखाया जाए। नेक्स्ट। इमोशनल स्ट्रेस, पेशेंट के साथ रहना, हर वक्त उनकी हालत देखना, काफी ज्यादा बर्नआउट हो सकता है केयर गिवर के लिए। हर रोज पार्किंसंस के बारे में बात करते रहना, उसे सुन के उदास होना, या उसके बारे में सोचकर उदास होना, काफी ज्यादा बर्डनिंग हो जाता है, ना सिर्फ पेशेंट के लिए बल्कि केयर टेकर के लिए भी। तो इसके लिए क्या करें? बेसिकली वी कैन टॉक अबाउट अदर थिंग्स। पेशेंट के साथ साथ केयर गिवर को उनके लाइकिंग्स के बारे में भी बात करनी चाहिए। उन्हें कौन सा गाना पसंद है, उन्हें कौन सा खाना पसंद है, उन्हें क्या करना पसंद है बाहर जाके, इस बारे में भी बात होना चाहिए, ताकि दोनों पेशेंट और केयर गिवर दोनों इक्वल एक दूसरे को अपॉर्चुनिटी दे, और वो रूम दे एक दूसरे को अच्छा फील कराने के लिए। अक्सर केयर गिवर्स एंजाइटी या डिप्रेशन महसूस करते हैं, इसलिए सेल्फ केयर जरूरी है। सेल्फ केयर सेल्फिश नहीं है। जब डिप्रेशन की हम बात करते हैं, जब हम एंजाइटी की बात करते हैं, इससे बहुत सिंपल चीजें जो हम घर बैठे पेशेंट के साथ साथ प्रैक्टिस कर सकते हैं,
जहाँ पे उनको भी सपोर्ट करे और खुद की भी हेल्प करे, वो है कुछ सिंपल एक्सरसाइज जैसे डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस हो गए, या उनके साथ खुल के बातें करें, आपके मन में कब क्या चल रहा है या पेशेंट के मन में कब क्या चल रहा है, वो क्यों कोई चीजों को लेके हट करते हैं या जिद करते हैं, उनके बारे में बात करके, ये सब आप जब करेंगे तो आप पेशेंट को भी उतना अच्छा जानेंगे और पेशेंट भी आपकी स्थिति उतनी ही अच्छे से समझ पाएगी. Try to carve out some personal time for your own hobby along with your patient's hobby. Next, social and financial burden. ये एक काफी अहम टॉपिक है. केयर गिवर्स के लिए अपनी काफी बार ऐसा हमें समझ में आता है कि केयर गिवर्स को अपनी जॉब छोड़नी पड़ती है या अपने फ्लेक्सिबल टाइम्स मैच नहीं होते, तो कभी हमें काफी पेशेंट्स आके बोलते हैं कि कभी उनको हाफ डे लेना पड़ता है या आज छुट्टी लेनी पड़ती है, तो इट इज वेरी एग्जॉस्टिंग. So this also adds to their mental stress as well as the social and financial burden equally. इसमें क्या कर सकते हैं? There are always options जहाँ पे आप फाइनेंशियल एड प्रोग्राम्स सर्च कर सकते हैं, अलग अलग फ्लेक्सिबल जॉब्स ढूंढ सकते हैं या सपोर्ट ग्रुप्स ढूंढ सकते हैं जहाँ पे इन चीजों पे बात होती हो या एटलीस्ट आपको सही दिशा दिखाई जाती हो कि कैसे मैनेज करना है आपके फाइनेंशियल बर्डन को भी और सोशल एनवायरनमेंट को भी आपके आसपास. नेक्स्ट, taking care of caregivers mental health, और अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. इसमें 3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी कि रिकॉग्नाइज करना स्ट्रेस अर्ली, सेल्फ, जो सेकंड चीज मैंने बताई थी सेल्फ केयर इज नॉट सेल्फिश, एंड थर्ड सीकिंग इमोशनल सपोर्ट. केयर गिवर की मेंटल हेल्थ भी उतनी ही इंपॉर्टेंट है जितनी पेशेंट की है. काफी बार केयर गिवर्स थक जाते हैं, इरिटेट हो जाते हैं या डिप्रेस फील करने लगते हैं, लेकिन वो किसी से बताते नहीं है. आधी टाइम तो ऐसा होता है कि शायद उन्हें खुद भी नहीं पता कि वो इस चीज से गुजर रहे हैं, लेकिन इक्वली इसी टाइम पे इन्हें इग्नोर नहीं करना है. देयर कम्स द सेल्फ केयर. एज आई सेड, सेल्फ केयर इज नॉट सेल्फिश. दे शुड टॉक अबाउट इट. दे शुड do all the activities along with the patient where they listen to music, their hobbies, social activities, talking to their friends. अगर पेशेंट से नहीं, फैमिली से नहीं, बट कई बार अपने दोस्तों से बात करना भी उतना ही उनको हेल्प कर सकता है. If not any of these, at least seeking a professional help from a counselor can also give aid to your problems. Next, sharing responsibility. Caregiving की जो एक काम, जो केयर गिविंग का जो एक काम होता है, वो सिर्फ एक इंसान का नहीं होना चाहिए फैमिली में, बल्कि हर एक फैमिली मेंबर का होना चाहिए. रिस्पाइट केयर जिसे हम कहते हैं, यानी कि केयर लेते वक्त ब्रेक लेना. आज अगर आपने पेशेंट के लिए केयर करते वक्त खुद के लिए 2 घंटा निकालने का सोचा है, तो वो बिल्कुल गलत नहीं है. उस 2 घंटे को आप ये डिसाइड कीजिए कि नेक्स्ट फैमिली मेंबर कौन है जिसे वो 2 घंटा वो स्पेंड कर सके, ताकि आप अपने लिए टाइम निकाल सको. सिमिलरली अगर आप ऐसे स्केड्यूल करो रूटीन को पूरे, कि फैमिली मेंबर्स में अगर आप ये बांट देंगे रूटीन उनका, तो हर फैमिली मेंबर के लिए भी वो उतना ही इक्वल हो जाएगा ये समझना कि पेशेंट किस तकलीफों से गुजरता है और उसके लिए आप किस तकलीफों से गुजरते हो हैंडल करना, यानी कि पूरी फैमिली इन्वॉल्व हो जाएगी जिससे आप पे भार कम हो जाएगा. Apart from family, taking help from doctors and caregivers can also give you a better friendly advices. Next, appreciate करना. Definitely हमें पता है कि पार्किंसंस डे है. Equally, we can always celebrate a day हमारे केयर गिवर्स के लिए, उनके लिए अप्रिसिएशन डे रख सकते हैं. ज्यादा कुछ नहीं, बस उनको थैंक यू बोलना या उनके लिए एक ऐसा मैसेज उनको देना जहाँ पे आप अप्रिशिएट करो उनके काम को, जहाँ पे सुन के उनको और वो एनकरेजमेंट मिले और वो प्रोत्साहन मिले जिसके लिए आपकी लाइफ वो और अच्छे से वो आसान कर सके. क्योंकि अगर क्वालिटी ऑफ लाइफ एक केयर टेकर की सुधरेगी, तो ही वो एक क्वालिटी ऑफ लाइफ एक पेशेंट की सुधर पाएगी. इट्स लाइक अ साइकिल, एंड डेफिनेटली इसमें इक्वल इंपॉर्टेंस दोनों को देना चाहिए, जैसे मैंने पहले बोला है. नेक्स्ट, conclusion of this small topic but an important one is talk about your problems openly. जब जब आपको लगे आपको कोई चीज बॉदर कर रही हो, तो डेफिनेटली उसके बारे में आपको बात करनी है, पेशेंट से, फैमिली मेंबर से, हर किसी से, क्योंकि हेल्प लेना कोई बुरी बात नहीं है ना छोटी बात है. इफ यू नीड हेल्प, यू नीड हेल्प एंड यू हैव टू वर्क ऑन इट.
And support givers means improving the lives of Parkinson's patients. So definitely you can only help them if you help yourself first. Next. जैसे कि सर ने बताया, पीसीटी का ये फॉर्म है मेंबरशिप बनने के लिए। आज लास्ट डेट है। डेफिनेटली ये स्कैन को आप स्कैन कीजिए और मेंबर बनिए। रजिस्टर करिए इस मेंबरशिप के लिए, ताकि इसके और भी जो जानकारी है हम आपको पर्सनली दे सके इस बारे में। नेक्स्ट, द लास्ट थैंक यू। डेफिनेटली यू आर नॉट अलोन, सपोर्ट इज अवेलेबल। Caring for your loved one is a major responsibility, and you have the ability to enhance this quality of life of Parkinson's if you enhance your quality of life first. Thank you. Thank you, Dr. Devashri. I think that was a very nice presentation, and I would like to ask people participating in the webinar to put their messages or question answers in the question answer box. Use the Q&A box, and also try to see when you log into the Q&A box an area called answered question, because I answer several questions, so your question might have already been answered because it was asked by someone else. किसी और ने पूछा था तो मैंने उसका जवाब दे दिया होगा। आपने ये केयर गिवर के बारे में सुना। केयर गिवर एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल अपने जीवन में, पार्किंसंस के पेशेंट के जीवन में प्ले कर रहे हैं, और इट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट एज ए डॉक्टर्स वी हैव रियलाइज कि हम खाली पार्किंसंस पेशेंट का भी नहीं, उनके केयर गिवर की भी सेहत का ख्याल करें। और ताली एक हाथ से नहीं बजती, ताली दो हाथ से बजती है। तो अगर पार्किंसंस के पेशेंट की, मरीज की जिंदगी अगर अच्छी बनानी है हमें, तो हमको दोनों की जिंदगी अच्छी बनानी है, ताकि आगे जाके उनको फायदा मिले। जसलोक अस्पताल में काउंसलिंग भी होता है, केयर गिवर का डिस्कशन भी होता है। तो कभी भी आपको जरूरत लगे कि आपको कोई लीनिंग शोल्डर की जरूरत है जहाँ पे आप बात कर सके किसी से, तो यू आर मोस्ट वेलकम टू रीच आउट टू जसलोक हॉस्पिटल। और कैसे जसलोक हॉस्पिटल पहुंचेंगे? तो आपका सबसे आसान रास्ता है पार्किंसन केयर ट्रस्ट का मेंबर बन जाने का। आपको ये वेबिनार के बाद पार्किंसन ट्रस्ट के मेंबरशिप का फॉर्म भी आएगा, और डिस्काउंटेड डीप ब्रेन स्टिमुलेशन सर्जरी का भी एक फॉर्म आएगा। तो अगर आपको दोनों में से जिसकी भी जरूरत है तो आप भर सकते हैं। पार्किंसन केयर ट्रस्ट के मेंबरशिप के लिए आपको कोई पैसा नहीं देना है, लेकिन आपको मुफ्त में काफ़ी इंफॉर्मेशन कंटिन्यूसली मिलती रहेगी। आई थिंक वी आर एक्सपेक्टिंग डॉक्टर रे चौधरी टू ज्वाइन। वो कभी भी अपने साथ आएंगे। तो विदाउट वेस्टिंग मोर टाइम मैं मेरा प्रेजेंटेशन चालू करता हूँ, और जब भी वो ज्वाइन होंगे तो वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने हैं वाले हैं, जो मैं 100% कॉन्फिडेंस से बोल रहा हूँ कि यहाँ पे जुड़े हुए ईच एंड एवरी पार्किंसन डिजीज पेशेंट विल बेनिफिट। आपको हर एक को फायदा मिलेगा, और ये लेक्चर वापस कभी भी सुनने को नहीं मिलेगा, कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डॉक्टर है जो रेयरली ये टाइप के वेबिनार्स में पार्टिसिपेट करते हैं। तो स्टिक टू द वेबिनार एंड जाइएगा मत, और ये कंटिन्यूसली सुनते रहिएगा। तो लेट मी स्टार्ट बाय शेयरिंग माय स्क्रीन एंड प्रेजेंटेशन। तो जैसे मैंने बताया था, आज का टॉपिक रहने वाला है हाउ कैन वी इम्प्रूव after deep brain stimulation surgery, improving outcome after deep brain stimulation surgery। आपने पहले दो लेक्चर्स में डीबीएस या डीप ब्रेन स्टिमुलेशन सर्जरी कभी की जाती है, उसके नए टेक्निकल एडवांसेस क्या है, ये इसके बारे में सुना। लेकिन आज के दिन में जिसने डीबीएस किया है या जो कराना चाहता है, उसका आउटकम कैसे इम्प्रूव किया जा सकता है, उसके बारे में बात करेंगे। और ये बार मैं अलग तरह से बात करूंगा आपसे, केस बता के, ताकि आपको तुरंत समझ में आए कि अरे ये तो मुझे भी यही प्रॉब्लम है, ये भी सॉल्व हो सकता है। मेरे डॉक्टर तो बोलते थे कि ये सॉल्व नहीं हो सकता है। तो लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट थिंग, प्रोग्रामिंग टेक्निक्स। जब भी हम करंट देते हैं पेशेंट को, तो एक चीज होती है जिसमें इंप्रूवमेंट आती है, और दूसरी चीज होती है जब भी करंट और तेज बढ़ाते हैं तो साइड इफेक्ट आती है। तो ये इंप्रूवमेंट और साइड इफेक्ट के बीच का जो गैप है, उसको थेराप्यूटिक विंडो बोलते हैं। अगर इंप्रूवमेंट 2 मिली एम्पियर पे आ जाती है, साइड इफेक्ट 3 मिली एम्पियर में आती है, तो मैं करंट धीरे 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 बढ़ाता जाऊंगा तो भी मुझे दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि मेरे पास 2 से 3 मिलीमीटर जाने की गुंजाइश है।
3 मिली एम्पियर तक नहीं गया तब तक मेरे को साइड इफेक्ट नहीं आने वाली है। कभी कभी ये उल्टा हो जाता है, तो इंप्रूवमेंट आने के पहले ही साइड इफेक्ट आ जाती है, जैसे ये पेशेंट में है। तो क्या किया जाए? करंट बढ़ा ही नहीं सकते, जैसे करंट बढ़ाते तो साइड इफेक्ट आती है, तो इसको कैसे कंट्रोल में किया जाए? तो ये पेशेंट को पार्किंसन डिजीज था, डीप ब्रेन स्टिमुलेशन सर्जरी की थी हमने। सर्जरी के बाद काफी अच्छा कर रहे थे, बट हमारे पास जब भी वापस फॉलोअप में आते हैं ये प्रॉब्लम्स पार्किंसंस के बढ़ते जाते हैं जैसे जैसे। ऐसे उसको स्लरिंग ऑफ स्पीच का प्रॉब्लम था और ये इनकी स्पीच थी। Now this is the recording of initial setting with pulse width 60. It is widely recognized that mathematics, music, and philosophy have several links. Around the words like butter, integrated. मुश्किल है कुछ समझने का। And their mind. तो आपने सुना कि ये बोलते हैं लेकिन बोल अपने को सुनने में क्लियर नहीं आती है बात। अभी ये हमने क्या किया कि इनकी जो पल्स विथ थी इधर 60 पल्स विथ और 60 पल्स विथ हमने वो ड्रॉप किया कर दी और 40 कर दी पल्स विथ, तो हमारा थेरापेटिक विंडो इंप्रूव हो चुका। In this setting, we have reduced the pulse width from 60 to 40 and we have increased the frequency from 110 to 130 hertz. Now in this setting, we have reduced the pulse width from 60 to 40 and we have increased the frequency from 110 to 130 hertz. Now we will see the changes in the speech. It is widely recognized that mathematics, music, and philosophy have inseparable links. Renowned philosophers like Bertrand Russell integrated their knowledge of philosophy with their analytical mind. Due to their deep grounding in scientific thinking and wrote exclusively to So you could see that it was much more clearer than before. And this was found by Professor Jens Bachmann from Germany, कि pulse duration settings of subthalamic nucleus can influence the outcome and side effects of patients of Parkinson's disease. कई बार हमारे पास पेशेंट्स आते हैं जिन लोगों ने बाहर डीबीएस करवाया है, जसलोक में डीप ब्रेन स्टिमुलेशन सर्जरी नहीं हुई है, कहीं और पे हुई है। और ये पेशेंट था हमारे पास, कलकत्ता से आया था, उनका नाम से ही पता चल सकता है, कलकत्ता से आया था। उन्होंने इंडिया में कोई और जगह पे डीबीएस कराया था बट उनको फायदा नहीं मिला था, तो वो हमको ढूंढते ढूंढते आ गया। जब भी सर्जरी के बाद इनकी तकलीफें कम नहीं हुई, ट्रेमर्स, रिजिडिटी, स्लोनेस, स्पीच डिफिकल्टी और डेली एक्टिविटीज करने के लिए काबिल नहीं रहे और साइड इफेक्ट्स होने लगी, तभी वो ढूंढते ढूंढते जसलोक अस्पताल आए। तो ये उनके प्रोग्रामिंग पैरामीटर्स थे। हम आपको इसकी डिटेल्स में बोर नहीं करेंगे। और ये इनकी वीडियो थी। आगे फॉरवर्ड आप करके उठिए, हाँ बैठिए। काफी स्लो थे, खड़े होने में दिक्कत थी, बैलेंस नहीं रहता था। चलने में दिक्कत है। जब भी हमने प्रोग्रामिंग किया उनको तो अच्छा तो हो गया, लेकिन थोड़ा ज्यादा ही अच्छा हो गया, जैसे आप देखोगे इस वीडियो में। Now इसको साइड इफेक्ट बोलते हैं डिस्काइनेसिया। on medication and on stimulation with increased current. He's having dyskinesia. Dyskinesia. सो पेशेंट को इम्प्रूवमेंट हुआ, लेकिन डिस्काइनेसिया की वजह से वो सेटिस्फाइड नहीं था, तो हमने क्या किया? Now is on medication, on stimulation, but the stimulation current has been reduced by 5 parts, and there is, we'll look for dystonia whether it is coming or not. Dyskinesia, we'll look for dyskinesia. Yeah. To So, control अभी dyskinesia that, नहीं आता। reduce the now there is no dyskinesia. कैसा लग रहा है आपको अभी? नहीं, अभी डिस्काइनेसिया नहीं है तो आपको कैसा लग रहा है?
स्पीच अच्छा हो गया वगैरह। कभी कभी पार्किंसंस के मरीज का डीबीएस के बाद बहुत ही अच्छा रिजल्ट आ जाता है, लेकिन जैसे जैसे रोग बढ़ता है, साइड इफेक्ट्स या एडवांसिंग स्टेज ऑफ पार्किंसन डिजीज होता है और नई नई दिक्कतें आनी चालू हो जाती है। फॉर ये एग्जांपल, ये पेशेंट था हमारा जिसको चलने में दिक्कत आना चालू हुई, फ्रीजिंग ऑफ गेट। नीचे उतरिए। कुछ वजह से ये वीडियो दिखती नहीं है समाव, बट उनको चलने में बहुत दिक्कत थी और देखते ही ये वीडियो प्ले होती है अच्छे से। नहीं, इसमें भी दिक्कत आ रही है। लेट मी सी इफ आई कैन फाइंड दिस वीडियो फॉर यू। लूप ऐसा लगता है कि प्रोफेसर चौधरी जुड़ गए हैं। स्वागत है रे चौधरी हमारे वेबिनार में, और हमें बहुत खुशी है कि आपने हमारा निमंत्रण स्वीकार किया। जैसा कि मैंने आपको बताया, प्रोफेसर रे चौधरी पार्किंसन रोग के क्षेत्र में सबसे प्रसिद्ध न्यूरोलॉजिस्ट और मूवमेंट डिसऑर्डर विशेषज्ञों में से एक हैं। मैं स्वयं उनके प्रति बहुत सम्मान रखता हूं, उन्होंने क्योंकि उन्होंने हमें दिखाया है कि हम पार्किंसन रोग को कैसे उपवर्गीकृत कर सकते हैं, और यदि हम लक्षणों पर अधिक ध्यान दें तो जीवन की गुणवत्ता को कैसे सुधार सकते हैं। और जैसा कि आपका शरीर महत्वपूर्ण है, लेकिन यह गैर मोटर लक्षणों पर है। पार्किंसन के मरीजों के साथ जवाब देने के लिए तो प्रोफेसर रे चौधरी ये है आप वेबिनार में आपका स्वागत है। और मैं जानना चाहता था कि क्या आपके पास समय होगा उज्जैन कि मैं प्रस्तुति पूरी कर सकूं, या आप अपनी प्रस्तुति करना चाहेंगे और मैं बाद में जारी रख सकता हूं। अगर आप अपने काम के लिए जाना चाहते हैं तो मैं बीच में प्रस्तुति ले सकता हूं। अगर ये ठीक है हाँ परेश, ये होगा। हाँ, ठीक लगता वास्तव में ये अच्छा है। मुझे बहुत खेद है, मेरे पास आज बहुत सारी काम है और मैं कोशिश कर रहा हूँ। नहीं, हम वास्तव में सराहना करते हैं। हम वास्तव में सराहना करते हैं। नहीं, ये कोई समस्या नहीं है। मैंने बस प्रस्तुति शुरू की है ताकि दर्शकों को व्यस्त रखा जा सके। तो हम स्क्रीन शेयर करना बंद कर देंगे। और अस्मिता, अगर आप प्रोफेसर चौधरी का एक बार फिर से परिचय करा सकें और फिर हम वेबिनार शुरू करेंगे। क्या आप चाहते हैं कि मैं अब अपनी स्क्रीन शेयर करूं? हाँ हाँ, मैं 1 मिनट में अस्मिता को आपको औपचारिक रूप से परिचय कराने दें। ठीक है। अस्मिता, क्या आप प्रोफेसर चौधरी के लिए स्लाइड दिखा सकती हैं? एड एच या हाँ, कृपया परिचय दें, कृपया। ठीक है। तो रे चौधरी किंग्स कॉलेज हॉस्पिटल लंदन में न्यूरोलॉजी और मूवमेंट डिसऑर्डर के प्रोफेसर हैं। वह पार्किंसन फाउंडेशन इंटरनेशनल और सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के निदेशक हैं किंग्स हॉस्पिटल और किंग्स कॉलेज में। वह इंडस्ट्री एंगेजमेंट आयत कमेटी के चेयरमैन और मूवमेंट डिसऑर्डर सोसाइटी के पार्किंसन वेलनेस कमेटी के टास्क फोर्स के सह अध्यक्ष भी हैं। उन्होंने 350 से अधिक सहकर्मी समीक्षित शोध पत्र प्रकाशित किए हैं। वह किंग्स कॉलेज हॉस्पिटल में शोध निदेशक और सहायक चिकित्सा निदेशक हैं। उन्होंने इस क्षेत्र में सबसे अधिक लेख प्रकाशित किए हैं। उन्हें इंग्लैंड के शीर्ष शोधकर्ताओं में से एक माना गया है और उन्हें 2021 में प्रतिष्ठित यूके NHS गोल्ड मेडिक्स अवार्ड से सम्मानित किया गया है। आपकी बारी डॉक्टर। धन्यवाद। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आप साझा करना शुरू कर सकते हैं। हाँ, मुझे नहीं पता कि आप स्क्रीन देख सकते हैं या नहीं। हाँ, हम इसे स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। हाँ, धन्यवाद। तो सबसे पहले प्रोफेसर दोषी को उनके स्नेहपूर्ण निमंत्रण के लिए धन्यवाद। और भारत में दर्शकों से बात करना हमेशा एक खुशी और आनंद की बात होती है। मैं खुद कोलकाता से आता हूं और एक विदेशी के रूप में इंग्लैंड आया था। अब भी एक विदेशी हूं,
लेकिन ऊह आप जानते हैं एक तरह से यहाँ रहता हूँ। और ऊह आप जानते हैं, और मैंने अपने काम और पूरे कार्य जीवन को पार्किंसन की गैर गतिशील समस्याओं को देखने के लिए समर्पित किया है। तो मैं आपको इसके बारे में थोड़ा बताना चाहूंगा, और विशेष रूप से चिकित्सकों के लिए इसकी प्रासंगिकता के बारे में। मुझे शोध को व्यावहारिक बनाना पसंद है, न कि केवल आप जानते हैं रॉकेट साइंस अगर आप चाहें तो। यह एक तरह का काम है जो हमने यहाँ कई सहयोगियों के साथ किया है, जिनमें से कई वास्तव में भारत में हैं। यहाँ होना बहुत खुशी और आनंद की बात है। मैं आपको एक समूह के बारे में बताना चाहता हूँ जो इस समूह द्वारा संचालित है, जिसे मूवर्स एंड शेकर्स कहा जाता है। वे बहुत प्रसिद्ध हैं। वे सभी पार्किंसन से पीड़ित हैं। वह समूह जिसे आप वहां देख रहे हैं, और उनमें से 2 मेरे मरीज हैं, और वे नियमित रूप से पॉडकास्ट करते हैं। आप इस पॉडकास्ट को देख सकते हैं, सुन सकते हैं। वे अविश्वसनीय रूप से वे वैश्विक हैं, और उन्हें मूवर्स एंड शेकर्स पॉडकास्ट कहा जाता है। वे हर 1 या 2 महीने में आते हैं। वे पार्किंसन के विभिन्न पहलुओं के बारे में बात करते हैं, और हाल ही में उन्होंने इस बारे में बात की कि न्यूरोलॉजिस्टों के बीच पार्किंसन के गैर मोटर मुद्दों के बारे में बहुत कम जागरूकता है। आप देख सकते हैं कि दर्द, थकान, नींद, उदासीनता, लार का टपकना, मूत्राशय की समस्याएं को आंत की समस्याएं हैं। ऐसे परिभाषित मुद्दे, फिर भी हम हमेशा कंपकंपी, ब्रैडिकिनेसिया और कठोरता के बारे में बात करते हैं। गिरना कैसे संकेत चलना संतुलन में मदद कर सकता है आदि। आहार पर कोई जानकारी नहीं। अक्सर हम आहार को पार्किंसन में इतना महत्वपूर्ण भूमिका नहीं देते। व्यायाम, भोजन और लेवोडोपा का समय। यदि आप लेते हैं लेवोडोपा के बाद दूध, लेवोडोपा अवशोषित नहीं होता। आदि आदि। तो यह वार्ता पार्किंसन से संबंधित उन व्यावहारिक मुद्दों पर थोड़ा ध्यान केंद्रित करेगी। अब परेश ने उप प्रकारों का उल्लेख किया। हम उप प्रकारों पर काम कर रहे हैं। इस वर्ष एक हालिया पेपर निकला है सिंगापुर में मेरे सहयोगियों के साथ, जहां हमने विभिन्न उप प्रकारों को नैदानिक रूप से परिभाषित करने की कोशिश की है। जब आपके पास पार्किंसन के साथ कोई मरीज हो तो आपको उन्हें उप प्रकार में विभाजित करना चाहिए, जैसे आप एमएस को उप प्रकार में विभाजित करते हैं। आप एमएस नहीं कहते, है ना? आप कहते हैं रिलैप्सिंग रिमिटिंग बीमारी, आप कहते हैं प्राइमरी प्रोग्रेसिव पार्किन एमएस, आप कहते हैं सेकेंडरी प्रोग्रेसिव, आदि आदि। तो पार्किंसन को अब नैदानिक रूप से 2 इस विशिष्ट प्रकारों में उप प्रकारित किया जा सकता है। ट्रेमर डोमिनेंट, शुरुआत से ही बहुत अधिक ट्रेमर। इन मरीजों में अक्सर हाइपोस्मिया होता है। उन मरीजों में सीरम यूरिक एसिड बढ़ सकता है। और दूसरा है PIGD, जहां मुख्य रूप से पोस्टुरल डिस्फंक्शन होता है। बहुत सारे संतुलन के मुद्दे। इन मरीजों में शुरुआती कोलिनर्जिक समस्याएं होती हैं। उनमें बहुत सारे गैर मोटर लक्षण होते हैं। उनमें आप प्लाज्मा न्यूरोफिलामेंट स्तरों में वृद्धि देख सकते हैं। यदि आप इसे माप सकते हैं तो आप देख सकते हैं। और इन मरीजों में बहुत सारे गैर डोपामिनर्जिक घाटे होते हैं। तो गैर मोटर उप प्रकार, जिनके बारे में मैं इसके बाद बात करूंगा, मुख्य रूप से PIGD इस मोटर फेनोटाइप में भी आते हैं। इसलिए दोनों के बीच एक ओवरलैप है, और यहीं पर हम आते हैं। तो गैर मोटर फेनोटाइप क्या हैं और उन्हें क्लिनिक में कैसे पहचाना जाता है? मूल रूप से 3। एक है कोलिनर्जिक डिसफंक्शन, जहां मुख्य रूप से स्मृति, मूड, उदासीनता आदि की समस्याएं होती हैं। दूसरा है नॉरेड्रेनर्जिक डिसफंक्शन। इन मरीजों को नींद की समस्याएं होती हैं, उन्हें डिसोरेंटोनोमिया होता है, और उन्हें आंत से संबंधित बहुत सारी समस्याएं होती हैं, और साथ ही दर्द भी होता है। और तीसरा डी है सेरोटोनर्जिक डिसफंक्शन, मुख्य रूप से नींद, मूड विकारों और बहुत अधिक थकान के साथ। तो ये 3 मुख्य मानदंड हैं कि इसके साथ ही चाल की समस्याएं, उदासीनता और दर्द भी आते हैं। और एक बार जब आप इसे पहचान लेते हैं तो आप व्यक्तिगत चिकित्सा कर सकते हैं। और हमने इसके बारे में कुछ साल पहले मूवमेंट डिसऑर्डर्स में इस दृष्टिकोण पत्र में लिखा था कि यदि आपको कोलिनर्जिक उप प्रकार मिलता है तो आपको इसे एक विशेष तरीके से उपचारित करना चाहिए। नॉरेड्रेनर्जिक उप प्रकार को एक विशेष तरीके से, सेरोटोनर्जिक उप प्रकार को एक विशेष तरीके से। लेकिन पहले आपको सक्षम होना चाहिए इनके बारे में जानना, सेरिट, और B क्लिनिक में इस भेद को करना। आप यह कैसे करते हैं? खैर, चलिए इतिहास में थोड़ा पीछे चलते हैं।
ये पीआरडी पेपर से लिया गया है, जैसे मैंने आपको दिखाया था। ये व्यापक उपप्रकार हैं जो आप क्लिनिकली प्राप्त कर सकते हैं। कुछ लोग अधिक संज्ञानात्मक मुद्दों के साथ प्रस्तुत करेंगे, कुछ उदासीनता के साथ, कुछ दर्द के साथ, कुछ नींद की समस्या के साथ, कुछ थकान के साथ, कुछ डिसऑटोनोमिया के साथ। मुख्य रूप से 7 शरीरीय नैदानिक अभिव्यक्तियां, उनमें विभिन्न न्यूरोट्रांसमीटर शामिल होते हैं, कुछ कोलिनर्जिक, कुछ सेरोटोनर्जिक, कुछ नॉरेड्रेनर्जिक, और उनके पास एक अलग ऊह लक्षण जटिलता होती है। हाल के शोध के साथ हम उनके रक्त आधारित बायोमार्कर, उनकी इमेजिंग में जाएंगे। ये बाद में आएगा, ये अभी भी ऐसा काम है जिसे पूरा करने की आवश्यकता है। तो कोलिनर्जिक डिस्फंक्शन, चलिए इसके बारे में थोड़ा बात करते हैं। पिछले 2 या 3 वर्षों में इस पर कई पेपर हैं। ये आपको इसका समग्र चित्रण देते हैं कि यह क्या हो सकता है, लेकिन नैदानिक रूप से यह कैसा है। खैर, नैदानिक रूप से लोग आपको 2 परीक्षण करने होंगे। एक, रोगी से क्लिनिक में एक पंचकोण की नकल करने के लिए कहें, और आप इसे देख सकते हैं। एक रोगी जो सामान्य रूप से एक पंचकोण की नकल कर रहा है, तो एक इंटरसेक्टिंग पंचकोण मैंने रोगी से नकल करने के लिए कहा, और रोगी ने इसे बिना किसी समस्या के कर दिया। यहाँ आपके पास एक रोगी है जो इसे सही से नहीं कर सकता। तो यह एक कोलिनर्जिक फिनोटाइप है। माफ कीजिए, आप देख सकते हैं तो एक और रोगी जो उसी परीक्षण को करने में संघर्ष कर रहा है, सिर्फ इस परीक्षण को करके। और आइए इसे आजमाते हैं। सर, क्या यह आपके लिए भ्रमित करने वाला है सर? हाँ। तो आप देख सकते हैं कि रोगी कैसे संघर्ष कर रहा है ना? तो सिर्फ इस परीक्षण को करके, और यह है जो उसने खींचा, वह नहीं कर सकता। ये एक और रोगी है जो इसे सही से नहीं खींच सकता, सिर्फ उस परीक्षण को करके। और 20-90 सेकंड में जानवरों के नाम पूछकर आप इस कोलिनर्जिक कमी की पहचान कर सकते हैं। अगर वे दोनों नहीं कर सकते तो लगभग निश्चित रूप से सोचते हैं कि उनके पास कोलिनर्जिक सबटाइप है। हम अब एक पूर्व अध्ययन कैम्ब्रिज कैंपेन कोहोर्ट स्टडी से जानते हैं कि 42%, यहाँ आप अपने बाएं ऊपर ग्राफ देख सकते हैं, इन मरीजों में से तेजी से डिमेंशिया की ओर बढ़ेंगे जब तक कि वे इसके बारे में कुछ नहीं करते। हर कोई पार्किंसन के साथ नहीं, केवल यह सबटाइप, और यह आपके क्लिनिक में बिना किसी जटिल परीक्षण के किया जा सकता है। इन मरीजों में आप और किन चीजों का ध्यान रखेंगे? खैर, अगर आपने ईईजी किया, यह इस महीने मूवमेंट डिसऑर्डर्स से आया है। अगर आपने ईईजी किया तो इन मरीजों में अक्सर एक विशिष्ट अल्फा बैंड्स कनेक्टिविटी होगी। अगर आप फंक्शनल कनेक्टिविटी को देखें, और इन मरीजों ने इसे देखा, और यह कोलिनर्जिक संलिप्तता का विशिष्ट है, कोलिनर्जिक का विशिष्ट। इसलिए ईजी केम इस विशेष समूह के मरीजों को परिभाषित करने में भूमिका निभा सकता है। और फिर यहाँ एक व्यावहारिक उदाहरण है। मैंने एक मरीज को देखा जिसकी याददाश्त खराब हो रही थी। न्यूरोलॉजिस्ट ने डिमेंशिया के इलाज के लिए डोनेपेजिल, फिर रिवास्टिगमाइन देकर इलाज शुरू किया, लेकिन मरीज ने डैशबोर्ड का उपयोग नहीं किया। मैं अंत में डैशबोर्ड के बारे में बात करूंगा। डैशबोर्ड में एक मुख्य चीज है कि मरीज से पेंटागन की नकल करने के लिए कहा जाए। इस मरीज ने यहाँ इस पेंटो इंटरसेक्टिंग पेंटागन की नकल करने की कोशिश की, इंटेंसी, और यह निकला। यहाँ स्पष्ट रूप से समस्याएं हैं। फिर आप देखते हैं कि यह मरीज कौन सी एंटीकोलिनर्जिक दवाएं ले रहा है। यहाँ एक सूची है जो आप कहीं भी पा सकते हैं। विशेष रूप से किसी भी लाल रंग की लाल सूचीबद्ध एंटीकोलिनर्जिक दवा का उपयोग करने में सावधानी बरतें, जो 3 अंक है। यदि आप कोलिनर्जिक पीढ़ी में लाल सूचीबद्ध एंटीकोलिनर्जिक दवाओं का उपयोग करते हैं तो उनकी याददाश्त और खराब हो जाएगी। उदाहरण के लिए, यह मरीज एमिट्रिप्टिलीन पर था। आप देख सकते हैं एमिट्रिप्टिलीन उस सूची में नंबर 1 पर है। एमिट्रिप्टिलीन, एट्रोपिन, बेंजाट्रोपिन, हायाजिथिन, इमिप्रामिन, ये शीर्ष पर हैं। इन मरीजों में इनका उपयोग नहीं किया जाना चाहिए। जैसे ही हमने एमिट्रिप्टिलीन बंद किया, मरीज में सुधार हुआ, तो उन्हें रिवास्टिगमिन की ज़रूरत नहीं है, उन्हें डोनेपेजिल की ज़रूरत नहीं है, उन्हें डिमेंशिया नहीं है। कोलिनर्जिक सबटाइप में एंटीकोलिनर्जिक्स का उपयोग स्मृति को और खराब कर सकता है, इसलिए क्लिनिक में इसे पहचानना महत्वपूर्ण है। बेशक उनके अन्य संबंध भी होते हैं,
इन मरीजों को अक्सर चाल की समस्या होती है। अगला क्लिप एक महिला की प्रोफाइल दिखाता है जो आप उसकी चाल की समस्या देख सकते हैं। वे मुड़ते समय जम जाते हैं। तो यह असंबंधित जमना है। ऊपरी शरीर ठीक है, केवल निचला शरीर जो अक्सर संवहनी रोग से जुड़ा होता है, कभी-कभी सामान्य दबाव हाइड्रोसेफालस के साथ, लेकिन यह इस प्रकार के लिए बहुत विशिष्ट है। इसके अलावा उन्हें कभी-कभी चाल की एप्रेक्सिया होती है, जो फिर से सामान्य दबाव हाइड्रोसेफालस के समान होती है। इसलिए इन मरीजों में सह अस्तित्व वाले एनपीएच को बाहर करने के लिए मस्तिष्क का एमआरआई स्कैन बहुत महत्वपूर्ण है। मुझे लगता है कि इन मरीजों में यह महत्वपूर्ण बात है। ठीक है। तो उसके बाद हमारे पास बस मजा है, बसो तो ऐसो। इसके साथ अन्य मुद्दे क्या हैं? यहाँ एक और अच्छा पेपर है। ये एक अमेरिकी मानचित्र है, जैसा कि आप पहचानेंगे। लाल क्षेत्र वे राज्य हैं जहां एंटीकोलिनर्जिक दवाओं का अधिकतम प्रिस्क्राइबिंग हुआ था और वहां डिमेंशिया की दरें सबसे अधिक थीं। तो यह सामान्य रूप से क्या बता रहा है कि यदि आप 0.3 एंटीकोलिनर्जिक्स का उपयोग करते हैं, और मुझे पता है कि हम में से कई ऐसा करते हैं, इस विशेष उपप्रकार में आपको वास्तव में सावधान रहना होगा, क्योंकि आप उनकी स्मृति की उच्च क्षमता, उनकी स्मृति समस्याओं को बढ़ा सकते हैं। तो इस उपप्रकार से यही मुख्य संदेश है। अब अन्ना सोबियर, जो मेरी एक फेलो हैं और अब जर्मनी के कोलोन में काम कर रही हैं, ने वर्णन किया कि यह गैर मोटर उपप्रकारों पर पहला पेपर है जिसे हमने वर्णित किया। यह 2015 का पहला पेपर था। हमने कहा कि इसलिए पार्किंसन के 3 उत्पत्ति के मार्ग हो सकते हैं: मस्तिष्क तना के माध्यम से, लिम्बिक प्रणाली के माध्यम से, संज्ञानात्मक के माध्यम से। कुछ में, जैसा कि मैंने आपको तब दिखाया था, नींद होगी, कुछ में स्वायत्तिक समस्याएं होंगी, मुख्य रूप से मस्तिष्क तना वाली, कुछ में थकान और दर्द होगा, और कुछ में संज्ञानात्मक और उदासीनता होगी। तो यहीं और वहां अवसाद और चिंता के लिए उप प्रकार हैं। तो जब यह सब होता है, तो आपको इन समूहों की पहचान करनी होती है। मैंने आपको पहले ही संज्ञानात्मक समूह के बारे में बताया है। आइए थोड़ी बात करते हैं उदासीनता के बारे में। उदासीनता बहुत दिलचस्प है। क्लिनिक में इसका मतलब है कि मरीज ध्यान केंद्रित करने में असमर्थ है, संलग्न होने में असमर्थ है, और यह कोलिनर्जिक हो सकता है, यह डोपामिनर्जिक हो सकता है, और यह वास्तव में महत्वपूर्ण बात है कि ये चीजें ओवरलैप कर सकती हैं। ये एक समीक्षा है जो हमने थकान और उदासीनता के बारे में की थी। तो ऑर्बिटोफ्रंटल कॉर्टेक्स और मेसोकॉर्टिकल मेसोलिम्बिक मार्ग शामिल होते हैं। 3 प्रश्न: क्या प्रेरणा में कमी है? क्या रुचि में कमी है? क्या भावनाओं के अनुभव में कमी हो रही है? और आपके पास डोपामिनर्जिक, गैर डोपामिनर्जिक हो सकता है, अक्सर अवसाद के साथ, अक्सर नींद के साथ। तो उदासीनता के लिए आप कौन सा उपचार उपयोग कर सकते हैं? डोपामाइन एगोनिस्ट बहुत उपयोगी हो सकते हैं। डॉकहट्स, विशेष रूप से रोटिकोटिन पैच, एंट या कोलिनेस्टरेज इनहिबिटर्स। यह निर्भर करता है कि यह डोपामिनर्जिक डोतम है या मैंने जिस कोलिनर्जिक उपसमूह का वर्णन किया है उसके साथ है, और यह हमारे समीक्षा से लिया गया है। आप दवाओं की पूरी श्रृंखला देखते हैं, लेकिन व्यापक रूप से आपको याद रखना चाहिए कि डोपामाइन एगोनिस्ट का प्रयास किया गया है। प्रामिपेक्सोल काफी अच्छा है, और कुछ लोग टीएमएस, ट्रांसक्रैनियल मैग्नेटिक स्टिमुलेशन के साथ आए हैं। दोहरावदार टीएमएस-पीडी में उदासीनता के लिए भी अच्छा हो सकता है, लेकिन आगे और काम करने की आवश्यकता है। लेकिन यह पार्किंसन के संदर्भ में पहचानना महत्वपूर्ण है। इसके अलावा कई गैर चिकित्सीय उपचार हैं जो अब उपयोगी हो रहे हैं। शारीरिक व्यायाम, सामाजिक संपर्क, भावना उन्मुख देखभाल, लाइव इंटरैक्टिव संगीत और बहुसंवेदी उत्तेजना। इनमें से सभी को पार्किंसन में उदासीनता, अवसाद, कम मनोदशा और चिंता की समस्याओं के लिए बहुत प्रभावी दिखाया गया है। इसलिए यदि आप एक क्लिनिक चला रहे हैं, तो इन सहायक संबंधों में से कुछ का होना उपयोगी है, ताकि मरीजों को इसकी सलाह दी जा सके। यह हमेशा केवल दवाएं देने के बारे में नहीं है। अब चलिए नींद पर नजर डालते हैं। पार्किंसन में नींद एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। हम न्यूरोपैथोलॉजिकल और न्यूरो इमेजिंग कार्य से जानते हैं कि यह मुख्य रूप से सेरोटोनिन डिस्फंक्शन से संबंधित है, और इसके साथ बहुत सारा काम किया गया है।
यह एक बहुत हालिया समीक्षा है जिसे हमने पिछले साल रोमानिया में अपने सहयोगियों के साथ विभिन्न प्रबंधन प्रोफाइल पर व्यापक रूप से प्रकाशित किया था और मुझे इस व्यस्त स्लाइड के लिए खेद है। एक तरफ आपके पास अत्यधिक दिन की नींद होती है, फिर अनिद्रा होती है, फिर बेचैन पैर सिंड्रोम होता है, फिर रियम व्यवहार विकार होता है और फिर सुबह की शुरुआत में अकाइनेसिया होती है। ये पार्किंसन में नींद की विकृति की व्यापक श्रेणियां हैं। आपको उन्हें पहचानने के लिए एक नींद स्केल जैसे PDSS उदाहरण के लिए एक एपवर्थ स्केल करना होगा और फिर विभिन्न के लिए विशिष्ट प्रबंधन विकल्पों के साथ आगे बढ़ना होगा। जब तक आप उन्हें पहचान नहीं लेते, आप एक समूह उपचार देंगे जो काम नहीं करेगा, क्योंकि जिस तरह से आप दिन की नींद का इलाज करते हैं वह अनिद्रा के इलाज के तरीके से बहुत अलग है। लेकिन यहाँ नींद के उपप्रकार के साथ आपको याद रखना होगा कि आपके 10 से 15% मरीज इस उपप्रकार को ले जाएंगे जो कि नार्कोलेप्टिक उपप्रकार है। ये मरीज अचानक सो जाते हैं। यहाँ 3 मरीज दिखाए गए हैं जो खाते समय पीते समय सो गए। एक तो गिर भी गया और उसके सिर में चोट लग गई। नार्कोलेप्टिक उपप्रकार तथाकथित अचानक नींद आने से जुड़ा होता है। पहचानना बहुत आसान है। आपको उन्हें एपर्थ स्लीपीनेस स्केल ESS करने के लिए कहना चाहिए। कुल स्कोर 24 होता है। इसे करने में 1 मिनट लगता है। यदि स्कोर 12 से अधिक है तो नींद के उपप्रकार के बारे में सोचें और सुनिश्चित करें कि आप स्लीप एपनिया को बाहर कर दें। इन मरीजों में, जैसे कि कोलिनर्जिक समूह में, आप 3 से अधिक स्कोर के साथ एंटीकोलिनर्जिक का उपयोग नहीं करते। इन मरीजों में आपको कभी भी डोपामाइन D3 एगोनिस्ट का उपयोग नहीं करना चाहिए। यह महत्वपूर्ण बात है क्योंकि आप एक नींद का हमला शुरू कर देंगे। तो यहाँ एक सूची है कि आपको क्या करना चाहिए। ये पहले से ही हमारे द्वारा प्रकाशित किया गया है। डोपामाइन D3 सक्रियण से बचें। इसके लिए मुख्य 2 दवाएं प्रामिपेक्सोल और रोपिनिरोल हैं। सतर्कता बढ़ाने वाले एजेंटों का उपयोग करें, मोडाफिनिल या कैफीन। इन मरीजों को गाड़ी नहीं चलानी चाहिए। उन्हें अकेले तैरने की अनुमति भी नहीं दी जानी चाहिए। कुछ लोग इन मरीजों में A2A एंटागोनिस्ट के परीक्षणों पर विचार कर रहे हैं क्योंकि यह सतर्कता बढ़ाता है। इस्टोडाफिनिल। आपको स्लीप एपनिया के लिए स्क्रीनिंग करनी चाहिए और अगर वे सेडेटिव्स या अन्य नींद लाने वाली दवाओं पर हैं तो आपको सोचना चाहिए कि क्या इन्हें बंद किया जा सकता है। और उन्नत रोग वाले कई मरीजों में ये मरीज या तो डीप ब्रेन स्टिमुलेशन या सबक्यूटेनियस लेवोडोपा थेरेपी के लिए उपयुक्त होते हैं क्योंकि तब आप इन अन्य गैर डोपामाइन गैर लेवोडोपा विकल्पों का उपयोग करने से बच सकते हैं। थकान अक्सर नींद के साथ सहअस्तित्व में होती है, जो एक थकावट की भावना है जो नींद लेने के बाद भी बेहतर नहीं होती। इसे पहचानने का यही तरीका है। थकान नींद की विकृति के साथ सह अस्तित्व में हो सकती है। थकान का इलाज कैसे करें, यह जानना बहुत कठिन है, लेकिन अब हम जानते हैं कि उच्च खुराक में लेवोडोपा का थकान पर अच्छा प्रभाव हो सकता है। इसलिए जब आपके पास गंभीर नींद की विकृति, गंभीर नींद की समस्याओं वाला मरीज हो, तो आप लेवोडोपा के इंट्राजुगुलर इन्फ्यूजन या के उपयोग पर भी विचार कर सकते हैं, या फॉसलेवोडोपा, सबक्यूटेनियस लेवोडोपा जो अभी उपलब्ध हुआ है, और साथ ही मोडाफिनिल जैसी दवाओं का उपयोग करें। हैदर डवजारी और अन्य के कार्यों से भी बढ़ती हुई साहित्य है कि STDBS पीढ़ी के थकान पहलू के लिए भी एक बहुत अच्छा उपचार हो सकता है, और यहाँ तक कि एक्यूपंक्चर। इसके साथ ही शारीरिक व्यायाम। इसलिए हमें इन सभी के बारे में सोचना चाहिए जब थकान का पहलू क्लिनिकल रूप में आता है। कुछ स्पष्ट प्रमाण हैं कि यह कैसे हो सकता है। ये ओपिकापोन ओएसिस अध्ययन से डेटा है नियसे, और आप देख सकते हैं कि सिर्फ एक COMT अवरोधक जोड़ने से, आपकी लेवोडोपा बढ़ाने से आपकी नींद की गड़बड़ी में सुधार होता है, जिसमें PDS स्केल में नींद और थकान शामिल हैं। तो यह एक छोटे अध्ययन से लिया गया है, लेकिन ओपिकापोन नई तीसरी पीढ़ी के COMT अवरोधक को लेवोडोपा में जोड़ने से यह आपकी लेवोडोपा को बढ़ा रहा है। यदि आप इसे और बेहतर करना चाहते हैं तो आप फॉसलेवोडोपा, फॉस्कार्बिडोपा का उपयोग कर सकते हैं। यहाँ एक मरीज है जो बंद है, आप देख सकते हैं, गंभीर कंपकंपी, गंभीर उदासीनता और गंभीर थकान के साथ। आप जानते हैं मरीज लेवोडोपा थेरेपी पर जाने वाला है, और यदि आप देखें, यह वही मरीज है फॉसलेवोडोपा, फॉस्कार्बिडोपा।
इन्फ्यूजन के बाद त्वचा के नीचे लेवोडोपा और कुछ नहीं। आप चेहरे के भाव देख सकते हैं। थकान में सुधार हुआ है, उदासीनता में सुधार हुआ है, मरीज चालू है, थोड़ी सी डिस्काइनेटिक है, नींद पर शानदार प्रभाव है, बस उच्च खुराक लेवोडोपा देने से, उच्च खुराक लेवोडोपा, यही यही उपाय है। तो यह भी ध्यान देने योग्य है कि यदि आप थकान और नींद की कमी का ध्यान नहीं रखते हैं, तो यह एक बहुत हालिया पेपर है फिर से हमारी तरफ से, जो सचमुच पिछले महीने निकला था। थकान का देखभाल करने वालों पर प्रभाव पड़ता है। तो मरीज, आपका पार्किंसन मरीज बहुत अधिक थकान महसूस करेगा और देखभाल करने वाले के बोझ में गंभीर वृद्धि का अनुभव करेगा। तो तट अवधि पर तो प्रभाव देख सकते हैं। तो जितना अधिक मरीज का थकान स्कोर जितना अधिक होगा, बीमारी की अवधि उतनी ही लंबी होगी, मरीज में अधिक चिंता, अवसाद होगा, या देखभाल करने वाले की स्थिति उतनी ही खराब होगी। तो आपको इस पहलू के बारे में भी सोचना होगा और यह कितना महत्वपूर्ण है कि पार्किंसन में नींद की समस्याओं को नजरअंदाज न करें, थकान को नजरअंदाज न करें, जो सेरोटोनर्जिक डिस्फंक्शन में देखा जाता है। अब इस पार्किंसन का एक और हिस्सा है गैर मोटर उतार चढ़ाव। फिर से इस साल हमारे द्वारा प्रकाशित एक बहुत ही हालिया पेपर गैर मोटर उतार चढ़ाव पर नजर डालते हुए JMD यानी जर्नल ऑफ मूवमेंट डिसऑर्डर्स में प्रकाशित हुआ है। आप इसे देख सकते हैं। यहाँ आप एक मरीज को देख रहे हैं और मैं आपको उन्हें व्यक्तिगत रूप से दिखाऊंगा। शांत रहें। शरीर मुड़ा हुआ है। क्या आपको दर्द हो रहा है ना? हाँ, मेरी पीठ के नीचे से लेकर यहाँ तक, वहां तक और यहाँ तक दर्द है। तो ये मरीज बहुत चिंतित है और दर्द में है, और ये तब होता है जब वह ऑफ होती है। जैसे ही हम उसे ऑफ अवधि से छुटकारा पाने के लिए उपचार देते हैं, दर्द गायब हो जाता है, चिंता गायब हो जाती है। अगला मरीज ऑफ है, एक अलग प्रकार का ऑफ। मिस्टर लैम्पार्ड, आप कहेंगे कि आप इस समय ऑफ अवधि में हैं? हाँ, मैं हूँ। क्या आप ऑफ अवधि के लक्षणों का वर्णन कर सकते हैं? मैं कहता हूँ, मुझे मेरे सिर के चारों ओर कसाव का एहसास होता है। हाँ। और सभी खोपड़ी की मांसपेशियां एक साथ सिकुड़ रही हैं। हाँ। और ऐसा लगता है जैसे मेरे सिर पर कोई वजन है। ठीक है। और मेरी गर्दन बहुत सख्त है। ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि इस मरीज को कसाव, झुनझुनी, सुन्नता, सिर दर्द है। गैर मोटर उतार चढ़ाव का अलग पहलू। तीसरा मरीज मुख्य रूप से बहुत चिंतित होता है जब इस तरह ऑफ होता है। ओह, माफ करना, ये सही है। सही कंधा, जो अक्सर जावेद होता है। क्या आप ये मूवमेंट बार कर सकते हैं? तो आप ऑफ एजेस के दौरान डिस्टोनिया और चिंता देख सकते हैं। तो ये सभी अभिव्यक्तियां हैं गैर मोटर उतार चढ़ाव। अक्सर हम इसे पहचान नहीं पाते। कभी कभी ये मरीज के लिए मोटर उतार चढ़ाव से अधिक परेशान करने वाले होते हैं, और इस समीक्षा में इस पर चर्चा की गई है। हमने सभी वर्तमान साहित्य की समीक्षा की है जो उपलब्ध है। आप इसका इलाज कैसे करते हैं? खैर, प्रबंधन वास्तव में निरंतर दवा वितरण द्वारा नहीं किया जा सकता। रिटोड्रिन पैच अगर आपके पास है तो ये बहुत अच्छा है। सफिनामाइड और ओपिकापोन बहुत अच्छे हैं, जैसा कि मैंने आपको दिखाया, क्योंकि ओपिकापोन लेवोडोपा की अवधि बढ़ा देगा। यदि आप उन्नत उपचारों में जाना चाहते हैं तो सबक्यूटेनियस एपोमॉर्फिन, इंट्राजेजुअल लेवोडोपा, सबक्यूटेनियस फॉस लेवोडोपा, साथ ही DBS। इन सभी के पास DBS के साथ 36 महीनों के डेटा हैं जो पिछले साल JNNP में प्रकाशित हुए थे। फिर से हमारे सहयोग से टीटा यह दिखाते हुए कि वे गैर मोटर उतार चढ़ाव को प्रबंधित करने में बहुत अच्छे हैं। इसलिए जब आप देख रहे हो तो आपको इसे अपने देखभाल के मार्ग में शामिल करना चाहिए। उन्नत उपचार, उदाहरण के लिए गैर मोटर उतार चढ़ाव, और आप उन्हें बहुत आसानी से माप सकते हैं, बहुत अलग सरल तराजू के उपयोग से। यहाँ तक कि तराजू की भी जरूरत नहीं, आप साक्षात्कार के माध्यम से भी कर सकते हैं। तो यह कुछ ऐसा है जिसे आपको गैर मोटर के बारे में याद रखना चाहिए। यहाँ एक उदाहरण है कि यह कैसे प्रभावित कर सकता है। यह रोगी युवा प्रारंभ पार्किंसन, उसकी बाईं ओर की डिस्टोनिया कंपकंपी देखें, और वह भयानक दर्द में है, भयंकर दर्द। यही वह चीज है जो उसे सबसे ज्यादा परेशान कर रही है ऑफ पीरियड के साथ। और वही महिला को एपोमोर्फिन के इंजेक्शन के बाद देखें, 15 मिनट या 10 मिनट के भीतर नाटकीय उलटफेर। इसलिए
डोपामिनर्जिक गैर मोटर उतार चढ़ाव को पहचानना बहुत महत्वपूर्ण है। ये किसी भी उप प्रकार में हो सकता है, लेकिन कुछ मरीज दूसरों की तुलना में इसके प्रति अधिक संवेदनशील होते हैं। हमें नहीं पता क्यों, और याद रखें, पैरेंट्रल या गैर मौखिक उपचारों का उपयोग इन मरीजों में बहुत बहुत प्रभावी हो सकता है। अन्य उपचारों के बारे में क्या? खैर, हाल ही में, और यह पेपर पिछले हफ्ते आया है, एलिगेंस पेपर, जो कि लेवोडोपा, कार्बिडोपा और टाकोपिन संयोजन है, जिसे लेसेजियन कहा जाता है, जिसे हम डोडोपा की तरह जेजुनम में दे सकते हैं। यह नींद और थकान पर अच्छा प्रभाव डालता है। यहाँ आप स्कोर देख सकते हैं। PDSS-2, रात में मोटर लक्षण, रात में PD लक्षण, बाधित नींद, सभी में 6 महीने और 1 साल में अत्यधिक महत्वपूर्ण सुधार हुआ है। तो ये जानना बहुत बहुत अच्छा है। ये उपचार यदि भविष्य में उपलब्ध होता है तो ये एक बहुत अच्छी बात होगी। इसके अलावा हमने हाल ही में प्रकाशित किया है कि यदि आप फॉस्लेवोडोपा, फॉस्कार्बिडोपा का उपयोग करते हैं, तो पिछले साल एक पेपर आया था, तो आप 24 घंटे की थेरेपी का उपयोग करके उनकी नींद में सुधार कर सकते हैं, जो इस समय आप केवल DBS के साथ या केवल फॉस्लेवोडोपा और फॉस्कार्बिडोपा के साथ कर सकते हैं। 24 घंटे का उपचार, आप उनके ऑफ समय में सुधार करते हैं, आप उनके जीवन की गुणवत्ता में सुधार करते हैं, आप दैनिक जीवन की गतिविधियों में सुधार करते हैं। तो ऑफ समय PDQ-39 जीवन की गुणवत्ता है और MDS EPDR भाग 2 है, जो दैनिक जीवन की गतिविधियां हैं। तो सिर्फ उस सेरोटोनर्जिक समूह में नींद में सुधार करके आप इन मरीजों के कई अन्य मापदंडों में भी सुधार कर रहे हैं। और दिलचस्प बात यह है कि हमने हाल ही में फॉस्लेवोडोपा, फॉस्कार्बिडोपा पर इस काम को प्रकाशित किया है। एक और क्षेत्र जहां यह विशेष रूप से उपयोगी है, वह है सुबह का शुरुआती ऑफ समय। और आप निचले ग्राफ में देख सकते हैं कि कैसे इन मरीजों में से 17% सुबह उठते समय पूरी तरह से अकड़े हुए थे। सुबह 3, 4 या 5 बजे के आसपास हिलने डुलने में असमर्थ थे। जब आप उन्हें 24 घंटे की इन्फ्यूजन पर शुरू करते हैं, जैसे कि अब आप लेवोडोपा के साथ कर सकते हैं, तो पहले सप्ताह में 31% पर नाटकीय गिरावट होती है। यह 67.7 से 31 है, जो फिर सप्ताह 52 में 77.8 पर स्थिर रहता है। तो यह उनके नींद में नाटकीय सुधार है, जैसा कि आप देख सकते हैं, केवल इस थेरेपी का उपयोग करके। तो एक चीज जिस पर विचार करना चाहिए, विशेष रूप से जब आपके पास यह सुबह का शुरुआती ऑफ समय हो, तो रात भर चलने वाली थेरेपी के बारे में सोचना चाहिए। और हाल ही में यह एक पेपर है जो वर्तमान में नोक्टूरिया के बारे में समीक्षा में है। पार्किंसन के कई मरीज रात में कई बार पेशाब करने के लिए उठते हैं। यदि आप सो रहे हैं और आपको रात में 5-6 बार उठना पड़ता है, तो आप अच्छी तरह से नहीं सो पाएंगे, आपकी नींद खंडित हो जाएगी। और दोनों ही रैंडमाइज्ड ट्रायल में, जो ग्राफ A है यह, और ओपन लेबल ट्रायल में ग्राफ B, आप देखते हैं कि यदि आप रात भर डोपा का उपयोग करते हैं तो नोक्टूरिया में महत्वपूर्ण कमी होती है। और मुझे लगता है कि यूरो इन्फ स्टडी में DBS के साथ भी इसी तरह के डेटा उपलब्ध हैं। इसे एक साथ लिखा जाना चाहिए कि इस समय नोक्टूरिया के लिए वास्तव में काम करने वाले केवल 2 उपचार हैं: रात भर के इन्फ्यूजन, जो फॉस्लेवोडोपा, फॉस्कार्बिडोपा या एपोमोर्फिन द्वारा दिए जा सकते हैं, या DBS। तो ये 2 चीजें हैं जिन पर विचार करना चाहिए, और यह मरीजों के लिए कितना कठिन है। इम्पल्स कंट्रोल डिसऑर्डर के बारे में क्या? फिर से एक बहुत हालिया पेपर अभी प्रकाशित हुआ है, तो इस साल हमारे लिए काफी उत्पादक रहा है। आप देख सकते हैं कि हमने क्या नया लिखा है। हम इम्पल्स कंट्रोल डिसऑर्डर के साथ कहाँ हैं, क्योंकि यह इस फिनोटाइप का हिस्सा है ना? विशेष रूप से कुछ फिनोटाइप डोपामिनर्जिक में जाएंगे और इस प्रकार के विभिन्न उपचारों का बहुत उपयोग करेंगे। यहाँ हमने जो कोशिश की है वह यह सुनिश्चित करना है कि आप इम्पल्स कंट्रोल व्यवहार और इम्पल्स कंट्रोल डिसऑर्डर के बीच अंतर कर सकें। दोनों एक जैसे नहीं हैं। और यदि आप सक्रिय प्रबंधन को देखें, यदि आप अपने मरीज को थोड़ा सा बिना किसी कार्यात्मक प्रभाव के रेट करते हैं, तो मरीज शायद थोड़ा अधिक उत्तेजित महसूस करता है, कुछ और चीजें खरीदना चाहता है, आप जानते हैं, शायद सामाजिक जीवन में अधिक शामिल होता है। इसके लिए उनके दवाओं को रोकने की आवश्यकता नहीं है, बस निगरानी की आवश्यकता है।
जबकि निश्चित रूप से अगर आपके पास हल्के से गंभीर ग्रेड है तो आपको ईगोनिस्ट्स को कम करना होगा, कभी कभी इसे रोकना होगा। और अगर मरीज को अभी भी यह जारी रहता है तो आपके पास वास्तव में डीबीएस या लेवोडोपा इन्फ्यूजन थेरेपी के विकल्प होते हैं कि और सभी मौखिक उपचारों को रोकना होता है। हाँ, तो वास्तव में हम वही हैं जहां तक विकास की बात है। आवेग नियंत्रण संबंधित व्यवहार विकार में मैंने यहाँ विभिन्न दवाओं की एक सूची रखी है। आप जानते हैं, आप देख सकते हैं कि पार्किंसन के लिए उपयोग की जाने वाली दवाओं में एक तीव्र वृद्धि हुई है। मैंने इसे इसलिए रखा है क्योंकि हमें याद रखना चाहिए कि दवाओं के अलावा भी अन्य चीजें हैं। पार्किंसन के साथ जो महान चीजें हुई हैं उनमें से एक यह समझ है कि गैर दवा उपचार शायद उतने ही महत्वपूर्ण हैं। और एक बहुत हालिया परीक्षण साइएनपीडी जिसे मेरी साथी वेलेंटिना ने विकसित किया है, जो अब मिलान में स्वीडिश समूह के साथ काम कर रही हैं, और यह एक यादृच्छिक बहुकेंद्र प्लेसिबो नियंत्रित अध्ययन है जो केवल एक प्रोबायोटिक का उपयोग करके दिखाता है जिसे सिनप्रूफ कहा जाता है। सिनप्रूफ क्यों? क्योंकि सिनप्रूफ आपके बड़ी आंत में पहुंचता है। अन्य प्रोबायोटिक्स ऐसा नहीं करते। लेकिन इसे दिन में एक बार उपयोग करके यह कोई दवा नहीं है। आप लेवोडोपा के बाद ऑन होने के समय को काफी बढ़ा सकते हैं। आप देख सकते हैं कि जीरो गुडसैव्स प्रभाव है यह स्वर पी मूल्य है। गैर मोटर लक्षण पैमाना भी बहुत महत्वपूर्ण रूप से सुधारता है और यह चिंता में कमी, मूड में कमी, नींद में सुधार द्वारा संचालित होता है। और साथ ही यदि आप प्लाज्मा में सूजन के बायोमार्कर मापते हैं तो आप टीएनएफ अल्फा स्तरों और इंटरल्यूकिन 6 स्तरों में सुधार देखते हैं। तो ईटिंग केवल अपने माइक्रोबायोटा को सुधार कर, क्योंकि आप सभी आंत मस्तिष्क परिकल्पना के बारे में जानते हैं, केवल आंत माइक्रोबायोटा को सुधार कर आप वास्तव में मोटर सुधार ला रहे हैं और प्लाज्मा में सूजन को भी कम कर रहे हैं। तो ये वास्तव में सिन प्रूफ का उपयोग करना बेहद आसान है। यह इंटरनेट पर उपलब्ध है, कोई भी इसे प्राप्त कर सकता है। इसी तरह कुछ हालिया अध्ययन भी कहते हैं कि व्यायाम हमारे मरीजों पर नाटकीय प्रभाव अब डाल सकता है, और अब मैं सभी मरीजों के लिए व्यायाम की सलाह देता हूं। सप्ताह में 50 मिनट का शारीरिक व्यायाम बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। और यह हमें मेरी अंतिम स्लाइड पर ले जाता है। तो गैर मोटर लक्षण, यही पूरी अवधारणा है। और हम जल्द ही एक जर्नल लॉन्च करने वाले हैं, विशेष रूप से गैर मोटर पहलुओं पर। वर्तमान में हम 2 सप्लीमेंट्स चला रहे हैं, तो कृपया परेश के माध्यम से हमें कुछ भी भेजने के लिए स्वतंत्र महसूस करें। हम इसे तेजी से आगे बढ़ाएंगे। नया यह है कि मैंने आपको उप प्रकारों के बारे में बताया है। मैंने आपको कुछ उप प्रकार विशेष उपचार के बारे में बताया है, और हमारे पास मान्य परिणाम मापदंडों के बारे में बात करने का समय नहीं था। लेकिन रक्त आधारित बायोमार्कर, जेनेटिक्स, प्रारंभिक शुरुआत पार्किंसन, ये सभी बहुत बहुत महत्वपूर्ण पहलू हैं। पार्किंसन के गैर मोटर पहलुओं के संबंध में गैर मोटर उतार चढ़ाव, तो इसे पहचानना वास्तव में बहुत महत्वपूर्ण है। और यह अंततः यह है, ये डैशबोर्ड में बुनियादी शर्तें हैं जो हमें विश्वास है कि हर पार्किंसन रोगी को मिलनी चाहिए। पहले, लेवोडोपा लेने के 40 मिनट बाद डेयरी से बचें। यदि आप लेवोडोपा लेने के बाद डेयरी कोई भी दूध उत्पाद लेते हैं तो यह लेवोडोपा के अवशोषण को नाटकीय रूप से धीमा कर देगा। दूसरा, हर हफ्ते 150 मिनट का शारीरिक व्यायाम, और मैं उन्हें व्यायाम स्नैक्स भी कहता हूं। आप दिन के दौरान छोटे छोटे व्यायाम कर सकते हैं जब तक कि यह 150 मिनट तक जुड़ जाए। इसका मतलब यह नहीं है कि हर किसी को लियोटार्ड पहनकर जिम जाना होगा। जो भी आपकी मदद करे, सिर्फ ऊपर नीचे चलना, ऊपर की मंजिल पर जाना, नीचे आना, अपने बगीचे में थोड़ा खेलना, जो भी हो। दिन में 7 से 8 घंटे की नींद अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह आपके ग्लिम्फेटिक्स को सक्रिय करता है, एमिलॉइड जमाव को कम करता है। नींद स्नैक्स, दिन के दौरान छोटी झपकी उपयोगी। दिन में 2 लीटर पानी पीने से निर्जलीकरण से बचा जा सकता है। और अंत में, जैसा कि मैंने आपको दिखाया है, सिनप्रूफ प्रोबायोटिक का उपयोग पिरिटाम भी बहुत बहुत महत्वपूर्ण है।
और फिर हड्डियों की जांच। याद रखने योग्य है कि 50 वर्ष से अधिक उम्र की 4 में से 2 महिलाएं, 5 में से 1 पुरुष ऑस्टियोपोरोसिस से पीड़ित होंगे। इसलिए सुनिश्चित करें कि वे विटामिन डी और विटामिन ओ सी ले रहे हैं। एंटीकोलिनर्जिक जागरूकता। कोलिनर्जिक उपप्रकार वाले लोगों को ग्रेड 3 एंटीकोलिनर्जिक्स नहीं देना चाहिए और जिनका एपवर्थ स्कोर 12 है उन्हें मूल रूप से गाड़ी नहीं चलानी चाहिए। आप जानते हैं यही सबसे महत्वपूर्ण बात है। तो मुझे लगता है कि मैं यही समाप्त करना चाहूंगा। हमारी चैरिटी के लिए धन जुटाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि इस डैशबोर्ड को विकसित किया जा सके, जिसे मैं चाहता हूं कि वैश्विक स्तर पर उपयोग किया जाए, जिसमें भारत एक प्रमुख भागीदार है। उम्मीद है कि लोग इसका समर्थन करेंगे। हमें बहुत सक्रिय रूप से पेशेंट वॉइस का समर्थन मिल रहा है और मैं फिर से आपका धन्यवाद करता हूं परेश, मुझे आमंत्रित करने के लिए, और मैं यहीं रुकना चाहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद प्रोफेसर चौधरी। और ये वास्तव में एक ज्ञानवर्धक व्याख्यान था। मुझे यकीन है कि बहुत से लोगों ने इसे सुना है, लेकिन हम इसे हिंदी में अनुवाद करेंगे अगर आप अनुमति दें टाइडा की और मरीजों के लिए, ये अगर हमें आपकी अनुमति हो। हाँ, कोई समस्या नहीं, धन्यवाद। तो क्योंकि हम इसे YouTube पर डालेंगे ताकि बहुत से लोग एक बार में नहीं समझ सकते थी और वे इसे वापस जाकर देखना चाह सकते हैं। दर्शकों के लिए कि ये एक महत्वपूर्ण विषय है जो दर्शकों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। एफ 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 डॉक्टर चौधरी नजमत की बात पर ध्यान दें। और या जो हाकन लगनी बॉबी और कई कई चीजें। आपको इस व्याख्यान को आराम से अपने सुविधाजनक समय पर फिर से सुनना चाहिए। यह YouTube पर और उन चैनलों के माध्यम से उपलब्ध होगा जिनमें आप भाग ले रहे हैं, ताकि आप इसे पुनः देख सकें। मेरे पास आपके लिए 2 या 3 प्रश्न हैं। प्रोफेसर चौधरी, क्या वह सूची में है अगर मैंने इसे मिस कर दिया हो? एंटीकोलिनर्जिक मैट्रिक्स ऐसी फेनिलासेटिन, क्या यह भी उसका हिस्सा है या इसे नहीं माना जाता? यह हानिकारक है। फिर से परेश, माफ करना, मैंने वो मिस कर दिया। ट्राइहेक्सीफेनिडल। ट्राइहेक्सीफेनिडल, हाँ, ये ग्रेड 2 में है। श्रेणी फिर से मैं उस समूह में इसका उपयोग करने में बहुत सावधान रहूंगा। ये सिर्फ वह समूह है, आपको सावधान रहना होगा, वे कॉपी नहीं कर सकते। पेंटागन को सही 20 सेकंड या 90 सेकंड में जानवरों के नाम बताने में समस्या है। तो मुझे लगता है कि मैं उस समूह में एंटीकोलिनर्जिक्स का उपयोग नहीं करना पसंद करूंगा। बिल्कुल, क्योंकि ये भारत में बहुत आम तौर पर उपयोग किया जाता है, इसीलिए मैंने इसे उठाया। खासकर वह एफ कुछ लोगों के साथ। दूसरी बात जो मैं बताना चाहता था, एक बहुत ही दिलचस्प अवलोकन। हमने लगभग 12 से 15 मापदंडों का एक यादृच्छिक नियंत्रण अध्ययन किया, जिसमें देखभालकर्ता का बोझ और पार्किंसन रोग के बारे में कई प्रश्नावली शामिल थी, जिसमें नृत्य प्लस ध्यान और संगीत प्लस ध्यान का उपयोग किया गया। तो यह एक बहुत ही संरचित अध्ययन था जहां हमने मरीज को एक विकल्प दिया, क्योंकि हमने महसूस किया कि जो व्यक्ति नृत्य पसंद नहीं करता और अगर मैं इसे एक चिकित्सा के रूप में करने के लिए मजबूर करता हूं तो यह लंबे समय तक नहीं चलेगा। और अगर कोई संगीत करना पसंद करता है तो हम उन्हें संगीत का विकल्प देते हैं और हम इस यादृच्छिक नियंत्रण अध्ययन में पा सके कि हम रोग की प्रगति और दंड को नियंत्रण समूह की तुलना में धीमा कर सके। तो लेकिन हमने 15 मिनट का ध्यान भी शामिल किया था और यह 1 घंटे का पर्यवेक्षित सत्र था। यह ऐसा नहीं है भी जो बिना पर्यवेक्षण किया जाता है, इसीलिए सप्ताह में 3 बार पर्यवेक्षित सत्र 180 मिनट आपके द्वारा सुझाए गए समय के करीब है, लेकिन हमने एक बहुत ही मजबूत सकारात्मक संबंध पाया। ये बहुत बहुत दिलचस्प है। मुझे लगता है आप जानते हैं डैशिस्टाकिन, हमें इनकी वास्तविक महत्ता के बारे में अधिक जागरूक होना चाहिए। आप जानते हैं सहायक विकास, बिल्कुल महत्वपूर्ण बातें मैंने उल्लेख की, वे शायद उतने ही महत्वपूर्ण हैं जितना लेवोडोपा दवाएं देना। बिल्कुल। और आखिरी सवाल जो मैं जानना चाहता था वो प्रोबायोटिक के बारे में था। तो जैसे आप विभिन्न प्रकार की गैर मोटर बीमारियों को अलग करते हैं, सही, तो प्रोबायोटिक समर्थन के लिए क्या आप आंत प्रथम पार्किंसन रोग और बाइंडेड्स मस्तिष्क प्रथम पार्किंसन रोग के बीच अंतर करते हैं, या इसे हर मरीज को दिया जा सकता है? मुझे लगता है कि यह वास्तव में अच्छा सवाल है परेश। मुझे लगता है कि आंत प्रथम वह है जिसमें प्रोबायोटिक्स शायद अधिक प्रासंगिक हैं।
हाँ, लेकिन यह कहने के बाद इसमें भी बढ़ती हुई रुचि है और इसे ठीक से नहीं देखा गया है। क्या कोलिनर्जिक उपप्रकार में भी आंत की विकृति है? सूजन संज्ञानात्मक समस्या का एक प्रमुख कारण है। हाँ, तो इसका उपयोग करने से आपको कोई नुकसान नहीं होगा। ठीक है, बढ़िया। तो मुझे लगता है कि ये एक शानदार ज्ञानवर्धक वार्ता थी और हम इसे संदर्भित करेंगे। और आप रुकने के लिए सबसे अधिक स्वागत है। दर्शकों के लिए गहरे मस्तिष्क उत्तेजना, विभिन्न तकनीकें, अगले 10 मिनट। मैं लॉग आउट करूंगा, लेकिन फिर मैं लॉग इन करूंगा। So I start with sharing the screen and we continue with our presentation. ये पोस्ट डीबीएस मैनेजमेंट क्या इंपॉर्टेंट है और किस तरह से हम कैप्चर कर सकते हैं वो मैं बताना चाहता था आपको। ये देखिए जो मैं बता रहा था कि 3 या 4 साल के बाद तकलीफें चालू होती है, जो डॉक्टर चौधरी ने भी बताई। एंड लुक एट दिस पेशेंट आफ्टर सर्जरी। अभी सर्जरी हो चुकी है, अच्छा था, थोड़े सालों के बाद खराब हो गया, क्योंकि डिजीज तो आगे बढ़ता ही है। नीचे उतरी, उठाइए पैर। देखो अभी जरा भी चल नहीं पाते हैं। तुम वीडियो देखो, हम देख रहे हैं, बहुत जरूरी है वीडियो। हाँ, उठाओ, डॉक्टर को इस पर डिसीजन लेना है। उठाइए, उठाइए पैर, उठाइए पैर, उठाइए, उठाइए पैर, पैर उठाइए, पैर उठाइए। और इसको हमने नए तरीके से स्टिमुलेशन का टेक्निक यूज किया, जिसको बोलते हैं ड्यूअल स्टिमुलेशन। इसको पहले सबस्टेंशिया नाइग्रा को सबथैलेमिक न्यूक्लियस को स्टिमुलेट करते थे। अभी सबथैलेमिक न्यूक्लियस एंड सबस्टेंशिया नाइग्रा दो चीज को स्टिमुलेट किया। तो अभी देखो कितना फर्क हो गया है। तो जैसे मैं बता रहा हूं कि ये स्किल खाली सर्जरी में नहीं है, सर्जरी के बाद इसको कैसे प्रोग्राम किया जाए और कैसे कैसे टेक्निक्स यूज की जाए जिससे आपको और फायदा मिल सके जब भी आपकी तकलीफें बढ़ती है। रिसेंटली वी कंडक्टेड अ इम्पोर्टेंट रिसर्च स्टडी, ऑटोमेटिक प्रोग्रामिंग कैसे किया जा सके। क्योंकि हमारा सेंटर तो बहुत एडवांस्ड है, तो हमारे पास बहुत सारा तजुर्बा है, लेकिन जो सेंटर नए हैं और उनको इतना नॉलेज नहीं है, तो उनके लिए ये नया स्टडी किया जिसके अंदर हमने पेशेंट्स को स्टैंडर्ड मेथड से और ऑटोमेटिक प्रोग्रामिंग मेथड से कंपेयर किया गया। तो हमको पता चला कि स्टैंडर्ड मेथड और ऑटोमेटिक प्रोग्रामिंग मेथड दोनों कंपेरेबल थे। दोनों में एवरेज प्रोग्रामिंग टाइम 14 मिनट में हम प्रोग्राम कर पाए थे और 70% पेशेंट्स ने ऑटोमेटिक प्रोग्रामिंग मेथड्स का इस्तेमाल करने का एक्सेप्ट किया। एंड ये जब भी हमने कहाँ पे ये करंट जाता है, स्टैंडर्ड प्रोग्रामिंग से ब्रेन के अंदर कहाँ करंट है वर्सेस ऑटोमेटिक प्रोग्रामिंग के अंदर कहाँ पे करंट जाता है, वो कंपेयर किया तो दोनों एक ही जगह पे था, इसीलिए तो दोनों को सिस्टम में फायदा था। सो दिस वाज द फर्स्ट स्टडी ऑफ इट्स काइंड इन द वर्ल्ड एंड इट showed a lot of benefits for automated programming for DBS. ये दूसरा प्रकार का इल्यूमिना 3D स्टडी है। अभी ये इल्यूमिना करके जो टेक्नोलॉजी है अमेरिका में उपलब्ध होना चालू हो गई है और सारी चीजें अभी इंडिया में भी वापस आ जाएगी। बट ये स्टडी में भी एक दूसरे प्रकार से ऑटोमेटिक प्रोग्रामिंग किया गया था और उसमें भी पता चला कि कॉम्प्लेक्स प्रोग्रामिंग, हम सादा प्रोग्रामिंग करते हैं तो इस प्रकार से 2 कांटेक्ट पॉइंट मैक्सिमम स्टिमुलेट कर लेते हैं, क्योंकि वही तो ह्यूमन माइंड सोच सकता है। लेकिन ये ऑटोमेटिक प्रोग्रामिंग में देखो आप चारों 4 कांटेक्ट पॉइंट यूज किए हैं और अलग अलग तरह के कॉम्बिनेशन से टेलर मेड प्रोग्राम पेशेंट को दिया गया, तो उसकी वजह से पेशेंट को साइड इफेक्ट्स कम और इंप्रूवमेंट ज्यादा मिल सकती है। कभी कभी तकलीफें बहुत बढ़ जाती है, तो सालों पहले जब डीबीएस अवेलेबल नहीं था, डीप ब्रेन स्टिमुलेशन, तभी मेडिकल ट्रीटमेंट में हमारे पास एक रोड ब्लॉक आ जाता था, वी वर हिटिंग अगेंस्ट द वॉल। तो क्या करते थे, तो डॉक्टर आपको अस्पताल में एडमिट करके सब दवाइयां बंद कर देते थे और फिर वापस चालू करते थे इन द होप दैट इट विल सेट द बॉडी अगेन। तो सिमिलर थिंग इज ए क्रोनो रिसेट। ये अभी अवेलेबल नहीं है, लेकिन हमारा रिसर्च इसके ऊपर चालू है, जहाँ पे डिसिंक्रोनाइजेशन किया जाता है और दिमाग के कोष को कंप्लीट डिसिंक्रोनाइज कर देते हैं ताकि डीबीएस का इंप्रूवमेंट जो है वो वापस कैप्चर किया जा सके। रिमोट प्रोग्रामिंग भी अभी आ गया है इंडिया में, खाली एक आध कंपनी अवेलेबल है, बट यूजुअली
थोड़े टाइम में ये भी रिमोट प्रोग्रामिंग हो जाएगा। तो आप अहमदाबाद है, कहीं और हैदराबाद है या बेंगलोर है, तो मैं मेरी ऑफिस में बैठ के आपको प्रोग्राम कर पाऊंगा। और लास्ट ये इसके बारे में बात करूंगा, ये जो नया सिस्टम आया है सेंसिंग और क्लोज लूप डीबीएस सिस्टम, जहां पे ब्रेन सिग्नल को सैंपल करके उसका असेसमेंट करके उसके सामने करंट, काउंटर करंट दिया जाता है, ताकि एक तरह से बोला जाए तो जितनी जरूरत है उतना ही करंट दिमाग को दिया जाएगा, नॉट कम नॉट ज्यादा। और वो कैसे हो सकेगा? क्योंकि ब्रेन के अंदर के सिग्नल पेसमेकर सेंसिंग करता है और सामने करंट डिलीवर करता है। ये लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, अभी रिसेंटली लॉन्च हुई है, और ये इसके बारे में और इम्प्रूवमेंट आगे जाके होता जाएगा। लास्ट 2 साल के बाद क्या होगा, 3 साल के बाद क्या होगा? तो एडेप्टिव डीबीएस होगा। आपके हाथ में बेल्ट होगा, आपके बेल्ट में वाइब्रेशन आएगा, करंट बढ़ जाएगा दिमाग में। आपको चलने में दिक्कत आती है, आपका पैर चिपक गया, दिमाग को सिग्नल जाता है, दिमाग करंट दे देता है। तो इस तरह से एडेप्टिव डीबीएस और न और बढ़ते जाएगा। ये हमारी जसलोक की टीम है, ये क्लिनिकल टीम है जिसके अंदर आप साइकोलॉजिस्ट, न्यूरोलॉजिस्ट, पेन फिजिशियन से लेके रेडियोलॉजिस्ट सबको देख सकते हो। ये ऑपरेटिव टीम है, ये ऑपरेशन के लिए बहुत बड़ी टीम की जरूरत होती है, करीबन 12-13 लोग रहते हैं यूजुअली। और ये है मेरी क्लिनिकल टीम जो क्लिनिक में मदद करती है। और अगर आपने जसलोक में डीबीएस करवाया है तो आप सब लोगों को पहचानते होंगे। विद दैट आई वुड लाइक टू एंड एंड टेक सम क्वेश्चंस इफ देयर आर एनी इन द क्वेश्चन आंसर रूम। या कपल ऑफ देम मैं आंसर करता हूँ। डॉक्टर चौधरी ने जो दवाइयाँ बोली है आज के दिन में अवेलेबल नहीं है। इंटेस्टिनल जेल इन्फ्यूजन ऑफ लिवोडोपा या फॉस लिवोडोपा दोनों गोलियां अवेलेबल नहीं है। प्रोबायोटिक अवेलेबल है। या और someone has thanked Dr. Chaudhary, which is good, and I think with that